Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with some important topics to discuss. But before starting, I just want to convey your information that to get all our notifications regarding our programs as well as offers and also the Diwali live sale, you can join the WhatsApp group of us, which is given in the description link below. Also, do join the WhatsApp group for the free study materials as well as the PDF of this analysis, as well as various number of other materials which can be useful for you all in your preparation phases. So now let's start with today's analysis. The first topic says about the verdict on the Karnataka hijab ban. So we know about the issue which was happening in the area of Udupi district of Karnataka. Dekho, in February 2022, there was a video of a female student clad in a burqa and a hijab who went viral on social media. Heckled by a large group of male students sporting saffron scarves across their necks and shouting Hindu religious slogans while entering her college premises, the girl retaliated with Islamic religious slogans in response. And the animosity between young adolescents of two faiths became a topic of discussion instantly and drew national as well as international attention. So जो ये डिस्ट्रिक्ट है, मैंने जो बोला था पहले, ये जो वीडियो है ये तो वायरल हो गया था, उससे ज्यादा इशू और हॉट बन गया था. लेकिन जो यहाँ पे उडुपी डिस्ट्रिक्ट में दो तीन लड़कियों को यहाँ पे जो एग्जाम्स देने आए थे, उनको एग्जाम्स देने नहीं दिया गया जस्ट बिकॉज दे वर वेयरिंग हिजाब्स. तो वहां से ही ये पिंड पॉइंट शुरू होता है अबाउट द इंसिडेंट ऑफ दिस हिजाब. एंड टुडे वी कुड सी अबाउट दैट द authorities of this college, that is the female students, at around there are some around 6 Muslim female students who were obstructed from going into the class of a government pre-university college. Okay, तो ये हुआ था दिसंबर 2021 में, when they were not allowed to enter any form of exams or even the classes. We all know about this hijab, which is a headscarf worn by the Muslim women to cover their head and neck in the presence of men who are not related to them. And the Islamic protects women's modesty and privacy. So this college development committee instructed students to follow the college dress codes that did not allow wearing hijab in the classroom. But these 6 females went on to show their dissent against change in the dress code of their institution. And within a few days, even other Muslim female students of several education institutions across the Udupi district wore hijabs, showing their solidarity with the girls protesting against the ban of hijab. And with return, the Hindu students showed their displeasure against this demand by wearing saffron scarves on the college premises. So the college premises or the college administration ordered the students to follow the college dress code till the government issued an order regarding the matter. And the students wearing hijabs or saffron scarves did not get permission to enter these institutions. So now ये जब बात बाहर निकल के आया, स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ा because it's directly becoming a hot topic in this whole state. So the government of Karnataka had to intervene by shutting down the colleges and school after at least this Mandya controversy. तो मैंने ये जो बोला था पहले में, जो आपका जो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ February 2022 में जो ये इशू बढ़ चढ़ के आया था आफ्टर दैट गर्ल who shouted some of the Islamic slogans. तो आफ्टर दिस वी कुड सी दैट ये जो था ये हम लोग का मांड्या डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. एंड आफ्टर दिस मांड्या कंट्रोवर्सी द स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर डायरेक्टली शट डाउन एंड स्टेट गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर रिगार्डिंग द ड्रेस कोड फॉर द स्टूडेंट्स. क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला कि हम लोग का यहाँ पे एक हम लोग का एक्ट है which is Karnataka's Education Act of 1983. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये न्यूज में भी है, याद रखना, KE Act of 1983. तो थ्रू दिस एक्ट students need to follow the dress code decided by their respective college departmental committees, and these committees are free to prescribe a uniform for their respective institution. And in case of not having a uniform, students are allowed to wear any piece of clothing that affects public law and order, equality and integrity. लेकिन फिर भी यहाँ पे और एक चीज बोला गया है कि by this act the hijab
does not comes under the essential religion practice, कि अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएंगे। तो इस टाइप वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे उन लोग के द्वारा बोला गया कि दिस हिजाब डज नॉट कम्स अंडर द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, एंड देयरफॉर दे वर डायरेक्टली नॉट अलाउड टू डू सो. So this issue directly went to the High Court of Karnataka. And one of the students from the government PU College for Girls, Udupi, moved to the Karnataka High Court with a writ petition to allow her and her fellow students in the classroom to wear a hijab. And it was stated in the petition that it is their fundamental right to profess their religion guaranteed under Article 25. And they also categorize it to be an essential practice in Islam. And the colleges cannot bar their entry into the classrooms with the hijab. Also, this petition registered by this girl said about that the college administration interfered with the fundamental right to education of female students when they tried to profess their religion wearing hijab inside the classroom. तो जब ये कर्नाटका कोर्ट के बेंच यहाँ पे बैठे, एक 3 जज बेंच यहाँ पे क्रिएट किया गया of the Karnataka High Court, consisting of the Chief Justice of Karnataka High Court, who was Ritu Raj Avasthi, फिर Justice Krishna S. Dixit and Justice J.M. Kazi. तो इन 3 लोगों के द्वारा ये बेंच क्रिएट किया गया. And they subjected the ban on hijab in education institution to the essential religious practice test. And this bench upholded that the restriction on wearing hijab inside classrooms, as they found it not to be essential religious practice in Islam. And according to this bench, it was clearly said that since it is not essentially but recommendatory and not following could amount to any change in religion. So the bench decided that the practice of wearing hijab by female student does not hold any ground for protection under Article 25 of the Indian Constitution. तो ऐसे यहाँ पे किसने बोला गया? ये बोला गया कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि ये 3 जजेस रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट इज जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट अवस्थी जी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित जी एंड जस्टिस J.M. काजी जी. तो ये कर रहे थे यहाँ पे. नाउ आफ्टर this bench observed that it is completely at the discretion of the education institute to have a uniform for the students, and that the students need to be abide by the rules prescribing uniforms in the education institution does not violate any fundamental right. तो जैसे ही ये वर्डिक्ट आया तो यहाँ पे नामंजूरी दिखाया किसने? दिस पीपल हु डायरेक्टली फाइल द पिटिशंस. तो लास्ट रिजॉर्ट क्या था? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट. सो इट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट and we could see about the Supreme Court took time, and all the peoples were eagerly waiting for the verdict of the Supreme Court. तो अब यहाँ पे एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, जस्टिस हेमंत गुप्ता के द्वारा और जस्टिस सुधांशु धुलिया के द्वारा. तो यहाँ पे इन दोनों लोगों के बीच में अभी डिफरेंसेस आ रहा है. इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, स्टेट हाई कोर्ट ने जो बोला था वो सही है, अपहोल्ड किया था. इन्होंने बोला कि द राइट टू एक्सप्रेस herself by wearing a hijab stops at the school gate. इससे बाद he cannot directly that lady cannot directly wear such number of hijabs inside the school. And ये आर्टिकल 19(1) जो फ्रीडम है ये वायलेट नहीं करता फंडामेंटल राइट्स. लेकिन यहाँ पे जस्टिस सुधांशु धुलिया के जी के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि दिस वेयरिंग अ हिजाब शुड बी सिंपली मैटर ऑफ चॉइस, एंड इट मे बी द ओनली वे her conservative family will permit her to go to school, and in those cases her hijab is her ticket to education. तो इन्होंने स्प्लिट व्यूज दिया. इन्होंने बोला कि जो ये सिस्टम है अभी हिजाब का पहनने का, तो कल परसों अगर यहाँ पे हम लोग रोक दे इस कम्युनिटी को, इस इस्लाम को हिजाब पहनने के लिए, लाइक दिस लेडीज हु इज प्रोपेगेटिंग इस्लाम, तो उन लोग को अगर हम लोग रोक दे तो कल परसों विदाउट हिजाब they will not be entered to any number of educational institutions by their respective family members. और ये क्या हो जाएगा? hindrance to their respective education, as at least we could see that हिजाब में ही उन लोगों को स्कूल्स जाने का मौका मिल रहा है, कॉलेजेस जाने का मौका मिल रहा है. लेकिन अगर हिजाब हम लोग यहाँ पे बैन कर दे, देन ऑब्वियसली इन लोग को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए इन लोग को अलाउ और इन लोग को परमिशन पेरेंट्स के द्वारा नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे अभी कंट्रास्ट आ गया है. तो therefore today the ST delivered directly a split verdict.
अगर मान लो यहाँ पे 3 जज बेंच, पता नहीं मेरे को कि 2 जज बेंच क्यों बैठा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 3 जज बेंच होते और 2 एक साथ में आ जाते, देन ऑब्वियसली अगर वो बोलते कि हाँ नहीं हिजाब बैन होना चाहिए तो बैन हो जाता, और अगर वो बोलते कि हाँ नहीं हिजाब बैन नहीं होना चाहिए, देन ऑब्वियसली इट वुड हैव नॉट बीन बैन। अभी सिंस ये 2 लोगों के बेंच के हिसाब से अभी ये स्प्लिट व्यू आया है, तो 50-50 हो रहा है, तो अभी ये फिलहाल आगे तक जाएंगे, तो पता नहीं और कितने दिन खींचेंगे। तो अभी तक इसका कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आई हैव डायरेक्टली analyzed the whole situation directly arising from the state of Karnataka, from the respective district of Udupi to the state of Karnataka High Court, and lastly to the Supreme Court. Okay, तो ये issue है अभी, and which is directly is going on the chains in some of the recent time periods. Okay, तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे जो ये NGLV है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, तो इसको रिप्लेस PSLV को रिप्लेस करेंगे दिस NGLV। वी ऑल नो अबाउट दिस PSLV। हम लोग को पता है PSLV क्या है, द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल है। एंड दिस NGLV, that is the next generation launch vehicle, is supposed to be replacing the PSLV soon. So this NGLV, which obviously is a very important element today, we often see about that PSLV, which is often termed as trusted workhouse of ISRO. He has or she has to retire one day. तो इसी के रिप्लेसमेंट में हम लोग NGLV को ले रहा है, who will be looking at some of the cost efficient 3-stage to orbit reusable heavy lift vehicle with a payload capability of 10 tons. तो यहाँ पे इनका वेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जो इनका जो एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट है विच इज नोन एज द रीयूजेबल लिफ्ट। तो मतलब आज मान लो ये ऊपर वी कैन सी अबाउट द सैटेलाइट्स, तो ये जो रॉकेट्स है, ये रॉकेट्स में जाके आसमान में इट्स डायरेक्टली जो आसमान का डिब्रीज होता है वो डिब्रीज बन जाते हैं। तो सैटेलाइट्स तो एक स्टेशन में हम लोग एक जगह पे हम लोग प्लॉट कर देते हैं, लेकिन ये जो रॉकेट्स है, ये रॉकेट वापस अर्थ में घूम के नहीं आते हैं, तो ये स्पेस में एक डिब्री बन जाता है। लेकिन ये जो NGLV है, इट इज अ रीयूजेबल थिंग, तो ये वापस आएंगे धरती पे और वापस इसको हम लोग यूज कर पाएंगे। सो therefore this NGLV which will feature in some of the semi cryogenic propulsion engine, ये कौन सा इंजन होता है, इट्स अ रिफाइंड केरासिन एज फ्यूल विथ लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर। और ये डायरेक्टली हम लोग का जो लॉन्च है, इट विल मेक इट चीपर एंड एफिशिएंट। ऑल्सो वी नो अबाउट दैट जो लो अर्थ ऑर्बिट का कैपेबिलिटी है, तो ये PSLV के बेसिस पे ये डायरेक्टली डबल वेट लेके जा सकता है। सो दिस NGLV which will feature a simple robust design allows some of the bulk manufacturing। also इनका जो स्टेजेस है, मिनिमल टर्न अराउंड टाइम है, बहुत कम है यहाँ पे, एंड दिस इज डायरेक्टली गोइंग विथ सम ऑफ द सक्सेस इन द नियर कमिंग टाइम्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो NGLV है, ये डायरेक्टली आज कल परसों वी कुड सी अबाउट इट रिप्लेसेस द PSLV which is an important launch vehicle, because ये PSLV क्या था, थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया था। ये डायरेक्टली अपडेटेड द फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल। PSLV हम लोग का 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल था, ये 3 स्टेज है। सो वी कुड सी मेनी चेंजेस एंड वी नो अबाउट दैट ये जो PSLV है, ये बहुत कम वेट लेके जाते हैं, बट व्हाट आई से अबाउट द weight carrying capacity of a GSLV, it's much more as compared to PSLV। तो इन टूडेज टाइम वी नीड अ रिप्लेसमेंट, क्योंकि PSLV एक थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। तो आज हम लोग एक नया लॉन्च व्हीकल लेके आ रहे हैं which could directly have a greater ability, greater efficiency, greater economy, so that we could launch some of the cheaper as well as efficient launches of the satellites। okay, तो ये हम लोग का अभी न्यूज में है, that is the NGLV which is of very basic importance today in a country like India, okay, which is directly revolving and expressing and progressing in some of the space missions। okay, चलो नेक्स्ट में आते हैं, चाइना's जीरो कोविड पॉलिसी। तो ये जो चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी था ना, दिस चाइना's जीरो कोविड पॉलिसी वाज बेसिकली a policy which was very much aggressive। okay, so we have seen that these policies of China which are necessary to eliminate and control the COVID-19 virus local transmission, this we could see about that यहाँ पे जो आउटब्रेक है,
this outbreak was much higher, even when India controlled it at a very rapid rate. And the policy of this zero COVID policy is affecting public life, and the citizens are very much of discontenting. Because a recent COVID spike, which led China to implement these measures and even implement some of the partial or full lockdown, यहाँ पे though this lockdowns were catered, though these policies were applied, but we can see peoples are directly facing this policy is directly facing resistance from the public. क्योंकि दो ये पॉलिसी रहा था, फिर भी चाइना का जो कोविड रेट है वो बहुत बढ़ गया था. So measures that are being implemented by China to stop this local transmission has been deemed as a draconian by the people, as they are not able to access some of the essential services, even like food as well as healthcare. And several major cities have come to a halt as residents of the cities are being confined to their respective houses with limited availability of essential resources. So the conditions of even some of the quarantine camps were also not up to the mark, which lacks some of the basic necessities of life, be it water, be it toilets, be it privacy, सब lack किए थे यहाँ पे. So today, therefore, यहाँ पे जो चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी है, यहाँ पे इसको प्रोटेस्ट के रूप पे इन लोग को देखा गया है. सो टुडे दो दिस थिंग्स आर डायरेक्टली हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रियल बात तो हम लोग को पता नहीं चलता है, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो तो मिलता नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है. बट जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इनपुट्स कमिंग इन फ्रॉम सम ऑफ द एजेंसीज, द इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि चाइना का जो ये जीरो कोविड पॉलिसी था ये टोटली फेलियर है, एंड लोग इससे खुश नहीं है. एंड चाइना थ्रू दिस पॉलिसी ऑल्सो कुड नॉट टैकल द menace ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक. ओके, तो ये एक छोटा सा न्यूज था अबाउट चाइना जीरो कोविड पॉलिसी. ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. एमजी नरेगा ड्यूरिंग पेंडेमिक. तो ये जो एमजी नरेगा है ना, ये बहुत लोगों को हेल्प किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पेंडेमिक. बिकॉज इफ आई से अबाउट दिस एमजी नरेगा, तो एमजी नरेगा हम लोग सब जानते हैं अबाउट द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ओके, जिसको हम लोग फिर भी एक एमजी नरेगा बोल के कभी बोलते हैं, और कभी कभी हम लोग एमजी NREGS बोलते हैं, जैसे नेशनल गारंटी स्कीम बोलते हैं. और ये एक लेजिस्लेशन लाया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अगस्त 2005 में इसको लाया गया था. एंड ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं लीगल गारंटी फॉर 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट in every financial year to adult members of any rural households who are willing to do public work related to unskilled manual work at a statutory minimum age. और ये कौन गवर्न करता था? इसको देखते थे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, who has monitoring power of the entire implementations in association with the state governments. So today we could see that over here, even roughly around 1/3 of the population is women's. So जो ये employment which is basically done on the criteria that he must be a citizen of this India, he must be a job seeker, he must be an applicant, he must be an applicant who voluntarily goes for some of the unskilled labors. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है in this respective category of MG नरेगा. ठीक है, तो अभी we have seen about that this MG नरेगा has benefited a lot many number of people who is directly a part of this respective scheme. So यहाँ पे अभी एक स्टडी के द्वारा यहाँ पे कंक्लूड किया गया है कि ये जो कोविड पेंडेमिक के टाइम में एमजी नरेगा का जितना भी अनस्किल्ड वर्क से जितने भी लोग को पैसा मिल रहा था, this has helped people compensate between 20 and 80% of the income loss incurred because of lockdown. लोगों को यहाँ पे फायदा हुआ है एमजी नरेगा की तरफ. तो ये बहुत ज्यादा जगह से एक डायरेक्टली रिपोर्ट्स आ रहे हैं. स्टडी एनालाइजेस अबाउट द 8 ब्लॉक्स इन बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां पे ये सब बहुत ज्यादा चलता है. So therefore today we could see about that the study titled Employment Guarantee During COVID-19, the role of MG Narega through all these organizations, which have revealed such number of increase, and also reported that around 39% of the all job card holding households are interested under the MG Narega who did not get a single day of work in the year 2020-21. तो आज दूसरे लोग भी आ रहे हैं, सब लोगों को यहाँ पे काम चाहिए इन दिस एमजी नरेगा स्कीम. तो इसका ये प्रोग्रेस बता रहे हैं कि हाउ दिस स्कीम्स हैज लिटरली हेल्प पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड पेंडेमिक. ठीक है, और इसीलिए आज भी गवर्नमेंट इसको चला रहे हैं. ओके, बिकॉज इट डज नॉट नीड्स एनी फॉर्म ऑफ स्किल्ड वर्क.
इट बेसिकली कंसंट्रेट मच मोर टुवर्ड्स अनस्किल्ड वर्क्स। ठीक है, तो ये था अबाउट छोटा सा एक स्कीम, छोटा सा एक न्यूज अबाउट द स्कीम विच इज एमजी नरेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। घोस्ट कैट, ये जनरली ये स्नो लेपर्ड देख सकते हो यहाँ पे, स्नो लेपर्ड। तो ये स्नो लेपर्ड मेनली यहाँ पे जो नामदफा नेशनल पार्क में जो बताया गया है कि नामदफा नेशनल पार्क में दिस स्नो लेपर्ड इज वेरी मच ऑफ प्रिवेलेंट, बट टुडे वी कुड सी दैट यहाँ पे आज तक कोई एक ट्रेसेस नहीं मिल रहा था अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस स्नो लेपर्ड इन दिस रीजन ऑफ नामदफा नेशनल पार्क। तो अगर मैं नामदफा नेशनल पार्क के बारे में बोलूं तो ये अरुणाचल प्रदेश के इस साइड में आता है, टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न, टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो सपोजली इफ दिस इज द अरुणाचल एज अ मैप, ऐसे अगर देख सकते हो तो अरुणाचल का मैप इज समथिंग लाइक दिस। ओके, ये अरुणाचल है, ये नीचे असम है मान लो। ठीक है, तो अरुणाचल का मान लो यहाँ पे ये जो फेमस इंपॉर्टेंट एरिया है जो तवांग बोल के है, ये तवांग यहाँ पे है। ठीक है, देन वी कैन सी अबाउट द सेला पास ओवर हियर, यहाँ पे सेला पास है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बॉम्बदिला है यहाँ पे। ठीक है, इनका जो कैपिटल है ईटानगर, दिस इज समवेयर अराउंड हियर। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ अबाउट दिस नामदफा नेशनल पार्क, इट इज समवेयर अराउंड दिस पोर्शन, इस एरिया में है नामदफा नेशनल पार्क। एंड इट बेसिकली लाइक शेयर्स इज बाउंड्री विद द हिमालयस। तो अभी ये जो नामदफा नेशनल पार्क में जो ये क्लाउडेड, जो ये स्नो लेपर्ड के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आज तक किसी ने इसका प्रेजेंस का महसूस नहीं किया, ना किसी ने देखा, ना किसी साइंटिस्ट ने, ना किसी फॉरेस्ट मैन ने यहाँ पे देखा है। लेकिन फिर भी लोग बताते हैं दैट आउट अबाउट अ लीसू एथनिक कम्युनिटी जिसके पास इस लेपर्ड का स्किन था, बिकॉज दे आर बेसिकली एन हंटिंग कम्युनिटी। ओके, लीसू एथनिक कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि लीसू एथनिक कम्युनिटी बिकम्स बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के एक हंटिंग कम्युनिटी है। तो इनके द्वारा जो हंटिंग किया गया था, इनके द्वारा जो स्किन्स थे ऑफ दिस क्लाउडेड लेपर्ड, तो अभी क्या हो गया, सिंस इन लोग का घर जल गया है तो ये जितने भी स्किन्स थे इन लोग के पास वो सब तबाह हो चुके हैं। तो जो एविडेंस था about the presence of the clouded leopard in this area of Arunachal Pradesh near to Namdapha National Park, ये भी मिट गया अभी। तो therefore अभी ये टोटल चीज न्यूज में है। तो इसीलिए यहाँ पे इनको घोस्ट कैट बताया गया है, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं देखा है। लेकिन दिस लीसू कम्युनिटी और द हंटिंग कम्युनिटी डायरेक्टली has claimed that they have possessed some number of skins of this clouded leopard, and since then they have seen the presence of this clouded leopard in this area of the Himalayas, that is to the south of the Himalayas. तो इसी के वजह से ये क्लाउडेड लेपर्ड न्यूज में है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है इनका। ठीक है, देन यू कैन सी अबाउट द किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जीनस, स्पीसीज कौन सा है। ठीक है, देन यू कैन सी अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ दिस क्लाउडेड लेपर्ड, कहाँ पे आता है ये। ठीक है, तो आज अगर हम लोग नामदफा नेशनल पार्क के बारे में बोले तो दिस नामदफा नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, मैंने अपना लोकेशन दिखा दिया आपको, तो इट इज लोकेटेड इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखना, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में इस नामदफा नेशनल पार्क को हम लोग को मिलता है। एंड इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कहाँ का, ईस्टर्न हिमालयस का। ठीक है, सो टुडे इफ यू गो टू दिस नामदफा नेशनल पार्क, इट इज द इंडियाज 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क बाय एरिया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। Also, Namdapha National Park is nestled between the Patkai and the Dafa Boom range of the Mishmi Hills. So, in this area, एक और river flow करता है through this Namdapha, which is known as Nodihing. Okay, Nodihing river यहाँ से flow करता है। In 1972, Namdapha was designated as a wildlife sanctuary. 1983 में इसको टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। And it has an area of around 1807.82 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये था अबाउट दिस नामदफा नेशनल पार्क विच इज एन इंपॉर्टेंट एरिया इन दिस रीजन एंड विच इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। तो ये नामदफा नेशनल पार्क मेनली 3 लार्ज कैट्स के लिए जाना जाता है, टाइगर, लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, तो अभी ये जो हम लोग का स्नो लेपर्ड है इसके बारे में अभी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे इनका प्रेजेंस है, लेकिन आज तक इसको कोई नहीं देखा है। जो ये लीसू कम्युनिटी देखा था, इनके पास स्किन था, इनका घर जल गया, तो अभी इनका जो एविडेंस था अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस स्नो लेपर्ड, ये भी मिट गया यहाँ पे। ठीक है, तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर
नेशनल पार्क इज डायरेक्टली न्यूज, तो ये देख लेना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। लास्टली, डज इंडिया नीड अ पॉपुलेशन पॉलिसी? तो यहाँ पे राइटर्स के द्वारा, जो ऑथर्स है यहाँ पे, तो इनके द्वारा एक ओपिनियन रखा गया है यहाँ पे कि इंडिया को एक पॉपुलेशन पॉलिसी चाहिए होता या नहीं। बिकॉज टुडे वी सी अबाउट, इफ आई से अबाउट इंडिया, क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने एक डाटा पब्लिश किया था कि इंडिया डायरेक्टली वुड सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2023। ठीक है, तो इन दिस वेरी थिंग वी नो अबाउट दैट द fertility rate of India is very much equivalent to the global demand. तो आज we can see about the countries which is our neighbor, be it China, be it Japan, be it South Korea, इन लोग का एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है। लोग जो 50 प्लस वाले लोग हैं, इन लोग के जो बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा ज्यादा हो रहा है। लेकिन वी एज अ कंट्री टुडे, जो हम लोग का एक एनालिसिस है अराउंड 2025 2025 तक, यहाँ पे बस हम लोग का, एक्सक्यूज मी, जो हम लोग का 2025 है, तो यहाँ पे बस 12% का ही एक एल्डर, जो एल्डरी है, बस उतना ही रहेंगे। लेकिन एक एनालिसिस है कि 2050 तक एवरी फिफ्थ इंडियन विल बी अराउंड 65 प्लस ईयर ऑफ एज। तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स हम लोग का सून 2050 तक का हम लोग का टाइम है, 2050 के बाद हम लोग थोड़ा बूढ़ा होना स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम लोग के पास ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, ओके, हु इज डायरेक्टली फेसिंग, हु इज डायरेक्टली हैविंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ आउटपुट्स, बिकॉज यंग पॉपुलेशन ऑब्वियसली होगा तो आउटपुट ज्यादा होंगे। और हम लोग का अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी बहुत सही है, इट इज अराउंड 2.1। ओके, तो आज जो स्टेट्स है और कंट्रीज है लाइक दिस चाइना, दिस साउथ कोरिया, दिस रशिया, इन लोग का जो पॉपुलेशन रेट है, बिकॉज ऑफ चाइनीज वन चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी, तो चाइना का क्या हो गया है? पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया है। इवन इट इज नॉट अराउंड 0.9% टोटल फर्टिलिटी रेट। तो उन लोग का पॉपुलेशन बुढ़ा होते जा रहे हैं और हम लोग का यंग होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि डज इंडिया नीड अ पॉपुलेशन पॉलिसी? क्योंकि आज अगर यहाँ पे हम लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, देन दिस में लीड टू व्हाट? दिस में लीड्स टू अ डेमोग्राफिक चेंज इन द कंट्री इन द रीसेंट टाइम्स। क्योंकि जैसे ही लोग कम बच्चा पैदा करने लगेंगे, देन ऑब्वियसली धीरे धीरे हम लोग का भी पॉपुलेशन एक एजिंग होता जाएगा। एंड इन सच नंबर ऑफ टाइम वी हैव टू फोकस मच मोर ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम if we needs to save our elderly, because we know about that. If I say about the total fertility rate, okay, the total fertility rate hai, this total fertility rate is the average number of children that a woman will have during her lifetime, and it is measured in terms of children per women. तो आज ये हम लोग का सही है, एंड इन द रीसेंट टाइम्स आज ये चाइना का कम हो गया है, साउथ कोरिया का कम हो गया है, जापान का कम हो गया है, तो इसीलिए उनका यंग पॉपुलेशन कम हो जाता जा रहा है। सो आज हम लोग का यहाँ पे रियलाइज किया गया है कि लाइक डज इंडिया नीड्स अ पॉपुलेशन पॉलिसी और नॉट? डज इंडिया नीड्स टू हैव अ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर और नॉट? क्योंकि इसका चैलेंजेस भी है, कंट्रोल भी करना चाहिए, बिकॉज अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली लेस रिसोर्सेस होगा, लेस स्पेस होगा, पीपल एक एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया में लोग ज्यादा रहेंगे। सो देयरफॉर वी नीड्स टू गो एंड फोकस ऑन वेरियस नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। अगर इन एस्पेक्ट्स पे ना जाए, देन ऑब्वियसली वी विल डायरेक्टली बूम विथ अ पॉपुलेशन, एंड इसके बाद हम लोग के पास उतना रिसोर्सेज नहीं लेंगे टू डायरेक्टली फीड अवर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे वही तर्क बितर्क का बात बोला गया है कि हाउ वेल वी कैन मैनेज द पॉपुलेशन इन अवर कंट्री, इसका क्या मेडिएशन है, ये सब बात बोला गया है। ठीक है, कैसे हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे हम लोग, क्योंकि अगर पॉपुलेशन, बस पॉपुलेशन का ऐसे ही काम नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे जो राइटर्स है 2 पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं कि पॉपुलेशन तो तुम इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन वो पॉपुलेशन क्या है, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। और दूसरी जगह में हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन अगर स्किल्ड हो, देन ऑब्वियसली इट इज डायरेक्टली गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ आउटपुट टू द रेस्पेक्टिव कंट्री। तो ये बताया गया है अबाउट दिस इंडियन नेशनल पॉलिसी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किया गया है, एनालिसिस किया गया है कि इंडिया को ये पॉपुलेशन पॉलिसी चाहिए है या नहीं। बिकॉज टुडे जो ये टोटल फर्टिलिटी रेट है, पहले ये बहुत ज्यादा था, आज 2.1 तक पहुंच गया, लोग आज कम बच्चा पैदा कर रहे हैं। सो इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट, दो इट इज ओके, 2.1 इज स्टिल ओके एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक चाइना, जहां पे 0.9 0.8 तक पहुंच गया है, साउथ कोरिया very pathetic rates of TFR. So India's TFR has been reducing substantially across the states. To hasten this drop, states should tackle the socio-economic issues confronting India's largely youthful demography rather than seeking
some of the other approaches to population control. तो ये हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा to tackle the population in the near future. तो कैसे हम लोग विद इन दिस पीरियड व्हेन आवर कंट्री इज डायरेक्टली यंग, कैसे हम लोग इस पॉपुलेशन को टैप करें, उसका रिसोर्सेज को टैप करें, और कैसे उसके एबिलिटी से हम लोग अपना प्रोग्रेस कर पाए. Okay, so this was the analysis today we could see about the editorial. Okay, so that's all for today. We would see about this 5 number of questions. So just attempt these questions and the MCQs you will get in tomorrow's PDF. And also, if you join our Telegram channel, you will get the free updates over here about even the answers of these 5 MCQs. So that's all for today. Here are the answers of yesterday's questions. So thank you and Jai Hind.